Hello, this is Varsha Kataria. Welcome to Study Portal. Let's start with the new chapter of biology, that is plant kingdom. As in previous chapter we have studied about the living world, in which we have talked about the differences between living and non-living things, and how on the basis of what criteria how we can categorize living and non-living things. What are the basic features? On the basis of that we have living and non-living differentiation. Then we have talked about biological classification. What are the various parameters? On the basis of that we have categorization of various type of animals, in which we have talked about Monera and Protista and fungi. Now in this chapter, Kingdom Plantae, we will talk about algae and plantae. So first of all, let's see how we have the system of classification in case of plants. Plants को कैसे categorize किया है, what are the various parameters, टाइम के साथ साथ हमारे प्लांट्स कैसे इवॉल्व हुए हैं, उसके बेसिस पे कैसे कैसे क्लासिफिकेशन आया प्लांट्स का, दैट वी हैव टू सी इन डिटेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मीन्स क्या सिस्टम है जिसके बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं प्लांट्स को. फर्स्ट ऑफ ऑल द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मीन्स superficially initial system of classification in which we have all those features, criteria, plants are classified, or you can say organisms are classified based on superficial or morphological character, morphological and superficial characters. Then natural system of classification, as the name indicating, नाम indicate कर रहा है कि ऐसा system जो natural है nature में, natural in classification, natural system of classification that deals with so many characters, so many features, and we have the broad vision of classification. And then finally the advanced or the modern system of classification, that is phylogenetic system of classification. Phylogenetic system of classification deals with the evolutionary classification, how we have the classification of plants based on the evolution, based on their relationship with the common ancestor. Common ancestor के साथ कैसे कोई प्लांट रिलेट कर रहा है, कैसे हमारे प्लांट के बहुत सारी जो डिविजन्स फॉर्म हुए हैं वो किस तरीके से फॉर्म हुए, दैट वी हैव टू स्टडी अंडर phylogenetic system of classification. So let's talk about the system of classification in detail. First of all, artificial system of classification. All the taxonomists from Aristotle to Linnaeus proposed this artificial system of classification. This system was the initial, or you can say pioneer system of classification. Initially जब हमारे पास साइंटिस्ट ने क्लासीफाई किया तो बहुत सारे सुपरफिशियल करेक्टर को देख के, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स को देख के क्या किया, क्लासिफिकेशन दिया ऑर्गेनिजम्स का, और यू कैन से प्लांट्स का. सो दैट इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है, फ्यू मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स, नॉट ऑल, फ्यू मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स, कुछ करेक्टर्स को लेके क्लासीफाई किया गया. इट इज प्रिमिटिव, ऑब्वियसली फर्स्ट है, तो आज के टाइम से हम कंपेयर करें तो ये कैसा है, बहुत ही पुराना सिस्टम है, प्रिमिटिव, और यू कैन से ओल्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. किसने दिया था, प्रपोज किसने किया था, कार्ल लीनियस. रिमेंबर, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आल्सो गिवन बाय कार्ल लीनियस. In this type of classification, as we are studying plant kingdom here in this chapter, so we have to take the system for the plants. हम plants से related क्या कर रहे हैं, उसको study कर रहे हैं. So in this system, plants are classified on the basis of, plants को कैसे classify किया गया है इस system के according, one or two morphological characters were taken. क्या लिए गए, बहुत ही कम फीचर्स लिए गए, और फीचर्स भी कौन से लिए गए, सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स लिए गए. सो वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स वर टेकन. ओवरऑल मॉर्फोलॉजी इज नॉट कंसीडर्ड. मीन्स
ओवरऑल करेक्टर्स क्या इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों करेक्टर को नहीं लिया गया है, यहाँ पे सिर्फ कुछ फीचर्स को लिया गया, कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को लिया गया. मेनली एक्सटर्नल फीचर्स वर इंक्लूडेड इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. तो लिनियस ने क्या किया, अपने बुक जेनरा प्लैंटेरम में प्लांट किंगडम को डिवाइड किया इनटू 24 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ ओनली 2 कैरेक्टर्स. कौन से 2 कैरेक्टर लिए गए, स्टैमेंस एंड स्टाइल. क्या कैरेक्टर लिए गए, 2 कैरेक्टर लिए गए. एक तो स्टेमन दैट इज मेल पार्ट ऑफ प्लांट, स्टाइल दैट इज फीमेल पार्ट were considered by the Linnaeus in his book Genera Plantarum. कितने क्लासेस बनाई गई, 24 क्लासेस बनाई गई. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू लर्न दिस. याद करना है हमें. ये कौन सी बुक है, जेनरा प्लैंटेरम. कितने क्लासेस बनाई गई, 24 क्लासेस बनाई गई. क्या करेक्टर लिए, 2 करेक्टर लिए. कौन से करेक्टर थे, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर थे, स्टेमन्स एंड स्टाइल. So this artificial system of classification was also adopted by the Adler for the classification of animals. जो Linnaeus ने प्लांट के लिए क्लासिफिकेशन दिया, ये आर्टिफिशियल सिस्टम, तो सेम को किसने कंसीडर किया, एल्डर ने कंसीडर किया एनिमल्स को, और क्लासीफाई किया एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट के बेसिस पे, कि कौन से एनिमल्स हैं जो हवा में उड़ते हैं, कौन से एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं, या फिर ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो लैंड पे रहते हैं, धरती पे रहते हैं. राइट. सो एनिमल्स के लिए एल्डर, प्लांट्स के लिए लीनियस. ओल्ड क्लासिफिकेशन है, पुराना सिस्टम है, प्रिमिटिव टाइप है, कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसीडर किया गया था इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट सिस्टम दैट इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. एज द नेम इंडिकेटिंग, क्या है ये, नेचुरल वन है. नेचुरल वन है. सो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है, ऑल पॉसिबल कैरेक्टर. किसको कंसीडर किया गया, ऑल पॉसिबल कैरेक्टर को. देयरफॉर दिस सिस्टम इज प्रैक्टिकली मोर यूजफुल इफ वी कंपेयर इट विद द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. अगर हम इसको आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से कंपेयर करते हैं तो उससे क्या है, ये मोर नेचुरल है, मोर सिस्टमैटिक है. सो इट वॉज गिवन बाय बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर. कॉमनली वी कैन से बेंथम एंड हुकर ने क्या दिया था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था. सो इन द सिस्टम प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लीट मॉर्फोलॉजी. एज द नेम इंडिकेटिंग, पूरा सारे करेक्टर्स यहाँ पे लिए गए हैं, तो सारे मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स को स्टडी किया गया, उसके बेसिस पे प्लांट को कैटेगराइज किया गया. सो इन इट द क्लासिफिकेशन ऑफ होल प्लांट इज इंक्लूडेड. ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ पर्टिकुलर करेक्टर को लिया गया, मीन्स या तो वेजिटेटिव करेक्टर ले रहे हैं या फिर रिप्रोडक्टिव करेक्टर ले रहे हैं. इट इज नॉट लाइक दैट. यहाँ पे पूरे प्लांट को कंसीडर किया गया है. उसकी स्टेम को भी स्टडी किया, रूट को भी स्टडी किया, लीव्स को भी स्टडी किया और फ्लावर को भी स्टडी किया. और वी कैन से वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स को इक्वली कंसीडर करके प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया. सो मैक्सिमम करेक्टर्स आर टेकन एज बेस इन दिस क्लासिफिकेशन. ज़्यादा से ज़्यादा करेक्टर को इंक्लूड किया गया. बट स्टिल देयर इन केस ऑफ प्लांट वी हैव डीमेरिट्स ऑफ दिस क्लासिफिकेशन. डीमेरिट्स क्या है, अगर हम प्लांट के बेसिस पे देखें कि प्लांट के केस में इस सिस्टम को जब यूज़ किया गया तो क्या डीमेरिट्स है. बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया उस केस में फाइलोजेनी को कंसीडर नहीं किया. फाइलोजेनी क्या है, दैट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, राइट. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को इग्नोर किया एंड they classified all the plants, all those seed bearing plants called as the spermatophytes. seed bearing plants spermatophytes. और कैसे उन्होंने इसको डिवाइड किया, फर्स्ट ऑफ ऑल डाइकोटिलीडॉन, फर्दर जिसकी 3 क्लासेस, 3 सब क्लासेस उन्होंने फॉर्म की. देन
gymnosperms and then monocotyledon. So we all know as per the modern classification dicots and monocots किससे belong करते हैं? Tell me quickly. Dicots and monocots belongs to which division of plants? Angiosperm, right? So these two belongs to एंजियोस्पर्म. यहाँ पे बेंथम एंड हुकर ने क्या किया, इनको डिवाइड कर दिया, मीन्स इनको सेपरेटली प्लेस कर दिया. एंड इन बिटवीन देर इज अ प्लेस ऑफ जिम्नोस्पर्म. वी नो दैट दिस जिम्नोस्पर्म इज कंपैरेटिवली प्रिमिटिव टू डाइकॉट एंड मोनोकोट. अगर यहाँ पे बेंथम एंड हुकर के बेसिस पे देखें तो डाइकॉट ज़्यादा प्रिमिटिव, फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म, आफ्टर दैट वी हैव monocotyledon or monocots. So according to that, gymnosperms were placed in between the dicot and monocot. Phylogenetic relationship को नहीं देखा गया. Gymnosperm दो primitive in nature as compared to the angiosperm, but उसको position क्या दिया, इन दोनों के बीच में दिया गया. So that was the demerit of natural system of classification of Bentham's and Hooker. I hope it is clear. Let's proceed on the next system, that is the advanced system, modern system of classification, which is phylogenetic system of classification. Phylogenetic system of classification किससे डील करता है, क्या बेसिस है यहाँ पे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करता है. इनिशियली द सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय एंगलर एंड प्रेंटल. इम्प्रूव किया हचिंसन ने. We have to learn, very very important. This system was proposed by Engler and Prandtl. Later on improvement जो आई सिस्टम में, that is by the Hutchinson. किसके ऊपर बेस्ड है, एक दूसरे के साथ क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, एक दूसरे के साथ क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, मीन्स क्या उनके कॉमन एंसेस्टर हैं, उसके बेसिस पे जब कोई क्लासिफिकेशन किया जाता है उसको बोलते हैं हम phylogenetic system of classification. Here we have to learn the name of the book that was given by the Engler and Prandtl. कैसे याद करेंगे इसको, nature lichen, remember lichen, nature lichen, Flagellin familin, important है. Genera Plantarum, book by Linnaeus. And nature lichen Flagellin familin book is by the Engler and Prandtl. किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ यहाँ पे प्लांट्स का, नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज. कैसे बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं, बहुत सारी जो क्लासेस हैं प्लांट की, एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटी शो करते हैं या फिर डिसिमिलैरिटी शो करती हैं. इन दिस importance to any one character is not given. All characters have the equal weightage. हर character को क्या दिया गया, equal weightage दी गई. While natural system of classification main focus कहाँ पे था, reproductive characters पे था, as compared to vegetative characters. So here we can see plant kingdoms को phylogenetic relationship के basis पे देखिए कैसे कैसे evolution हुआ है plants का, कैसे कैसे हमारे plants evolve हुए हैं, क्या उनके common ancestor थे, कौन से type के plants primitive type हैं, कौन से type के plants हमारे advanced type के plants हैं. That is considered here in this system of classification. So first of all plant kingdom को sub kingdom में divide किया गया. Thallophyta based on the बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी कैसी है यहाँ पे, थैलेस लाइक है, थैलेस लाइक. रिमेंबर वी हैव स्टडीड दिस इन केस ऑफ फंजाई ऑल्सो. हाइफी जहाँ पे माइसीलियम फॉर्म करती है, थैलॉइड बॉडी इज देयर. लाइकवाइज इन केस ऑफ प्लांट एम्ब्रियो एब्सेंट एंड द बॉडी इज लाइक थैलेस. दैट वी ऑल नो इट इज एल्गी. ये क्या है, हमारा एल्गी है. देन एम्ब्रियोफाइटा जहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्म होता है, एम्ब्रियोफाइटा जहाँ पे एम्ब्रियो क्या होगा, बनेगा, फॉर्म होगा. फर्दर डिवाइडेड इनटू जिम्नोस्पर्म में मोनोकोटिलिडोनी एंड डाइकोटिलिडोनी.
तो यहाँ पे इन बिटवीन जो हमारे क्रिप्टोगैम में है, वेयर वी हैव द हिडन स्पोर्स और यू कैन से स्पोर फॉर्मेशन, उसके बेसिस पे सारा हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन हुआ है. हाउ वी हैव द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ कैसे लिंक है, कौन कौन से मेंबर से इवॉल्व हुआ है, दैट वाज कंसीडर इन दिस फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. नाउ beside all these system of classification, there are some other taxonomic studies, or you can say based on all those resources we have further more clarity in the classification. और बहुत सारे types को consider किया गया और बहुत सारे points को consider किया गया जिसके basis पे क्या गया, plants को divide किया गया और classify किया गया. So some other taxonomical resources to resolve the problem of classification are numerical taxonomy, cytotaxonomy and chemotaxonomy. Cyto and chemotaxonomy. Numerical taxonomy as the name indicating, यहाँ पे किसको consider कर रहे हैं, numbers को consider कर रहे हैं in case of numerical taxonomy. So as you can see in this figure here, some numbers are given for each character in each taxa. That particular character is present or not, उसके basis पे क्या है, positive negative sign दिया गया. So numerical taxonomy is something which is based on computer these days, is based on observable character. क्या observe हो रहा है उन character के basis पे क्या किया गया, categorize किया गया. Such as each character is given a unique code. हर एक character को क्या दिया गया, एक unique code दिया गया. And number in this way, each character is given equal importance, and at the same time hundreds of character can be considered. Suppose in taxa this character number 1 is the presence of 2 petals. Character number 2 is like the presence of or the number of gynoecium. Third character presence or the number of androecium. And on the basis of that, in that particular taxa, whether it is present or not, present के लिए positive लिया गया, अगर कोई character नहीं present है तो उसके लिए कौन सा sign लिया गया, negative sign लिया गया. So that's how each and every characters were considered. सारे characters को क्या किया गया, consider किया गया और सबको equal weightage देके उन सारे characters को कंप्यूटर में feed करके classification किया गया. So that is numerical taxonomy. Then cytotaxonomy, as we all know, cyto term is related to, किससे related है, cyto means related to cytoplasm, like we have cytokinesis where we have the division of cytoplasm, right? So in this classification, जो cytoplasm के अंदर कंटेंट प्रेजेंट है, केमिकल्स प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, एंटिटीज प्रेजेंट है, उनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया. सो हियर दिस इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंपैरेटिव साइटोलॉजिकल स्टडीज. क्या क्या इंक्लूड है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है किसी पर्टिकुलर सेल के पास, किसी पर्टिकुलर प्लांट के पास, राइट. सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, स्ट्रक्चर कैसा है क्रोमोसोम का, और मियोटिक बिहेवियर कैसा है क्रोमोसोम्स का, मीन्स हाउ दीज क्रोमोसोम्स आर सेपरेटिंग ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, मियोसिस. और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे कंसीडर किए गए while dividing, while categorizing the plants. So as you can see how we have the use of chromosome. साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जो भी कंपोनेंट है, एंटिटीज हैं, उसके बेसिस पे जब हमारा क्लासिफिकेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोटैक्सोनॉमी. मोर एक्यूरेटली इफ यू आर स्टडीइंग द न्यूक्लियस देन इट इज कॉल्ड एज द कैरियोटैक्सोनॉमी. अगर डिटेल में न्यूक्लियस को पढ़ा जा रहा है, अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम को पढ़ा जा रहा है, हाउ द क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन पर्टिकुलर सेल, देन इट इज कॉल्ड एज द कैरियोटैक्सोनॉमी. सो मोर एक्यूरेटली अगर हम ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं तो हम कैरियोटैक्सोनॉमी को भी यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं. देन कीमोटैक्सोनॉमी, एज द नेम इंडिकेटिंग इट इज रिलेटेड टू समथिंग केमिकल. क्या यूज हुआ है यहाँ पे, केमिकल यूज हुआ है.
तो केमिकल के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, हम प्लांट्स को कैटेगराइज कर रहे हैं। प्लांट्स को किस बेसिस पे कैटेगराइज कर रहे हैं कि वो क्या केमिकल सिक्रीट कर रहा है, विच टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, विच टाइप ऑफ केमिकल्स आर सिक्रीटेड बाय द सेल्स, दैट इज कंसीडर्ड व्हाइल क्लासिफिकेशन कॉल्ड एज द chemotaxonomy. So use of chemical constituent of plant for taxonomic studies is known as the chemotaxonomy. कोई भी केमिकल हो सकता है प्लांट का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, सम अदर प्रोडक्ट्स, पेप्टाइड्स, वैक्स, फैट, ऑयल, फिनोल, ये सब हम कंसीडर करते हैं. लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ पोपी प्लांट. पोपी प्लांट फ्रॉम वेयर वी हैव दिस लेटेक्स, ये लेटेक्स प्रोड्यूस कर रहा है एंड इसके बेसिस पे हमारे टाइप ऑफ प्लांट हम कंसीडर करें, लाइक ड्रग प्रोड्यूसिंग, जो मेडिसिन प्रोड्यूसिंग हमारे प्लांट्स हैं, या कोई ऐसे प्लांट्स जो वैक्स प्रोड्यूस करते हैं या ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स को क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल दे सिक्रीट. सो दिस इज ऑल अबाउट अदर रिसोर्सेज दैट वी कैन यूज इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो यूज किए जा सकते हैं. चलो, let's see the differences between the taxonomy and systematics. यहाँ से क्वेश्चन आता है, based on the features, based on the characters, based on the type of classification, we have differences between these two terms. First of all, taxonomy, discipline of classifying organism into taxa, or it is also called as the rank. रैंक भी बोलते हैं. ऐसा सिस्टम जिसमें ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है किसमें, टेक्सा में. सिस्टमैटिक किससे डील करता है, ब्रॉड फील्ड ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्पीशीज. कैसे कोई पर्टिकुलर स्पीशीज डाइवर्सिफाई है, क्या उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, नंबर्स हैं. डिटेल में जब हम स्टडी कर रहे हैं, इवोल्यूशन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज द सिस्टमैटिक्स. गवर्न्स द प्रैक्टिस ऑफ नेमिंग. ऑब्वियसली टेक्सोनोमी किससे डील करता है, नेमिंग, नॉमेनक्लेचर, किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं एंड स्पेसिमेन में प्रिजर्व कर रहे हैं फॉर लेटर स्टडीज, दैट इज टेक्सोनोमी. while this systematics deals with the evolutionary history, किसी ऑर्गेनिज्म की, किसी स्पीशीज की जो हमें मिला है, उसकी क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, उसकी क्या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, कहाँ से वो इवॉल्व हुआ है, कौन से टाइप के कॉमन एंसेस्टर से फॉर्म हुआ है, दैट इज अंडर दिस इवोल्यूशनरी history, or you can say systematics and phylogenetic relationship in addition to the taxonomy. Means what, systematics का ही छोटा पार्ट है. एक छोटा पार्ट क्या है हमारा, taxonomy है. broad term क्या है, systematic है. broad term is this systematics. इसके अंडर कौन आ रहा है, taxonomy आ रहा है, right? So you can see here taxonomy क्या है, किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना और उसको नेमिंग देना, नॉमेनक्लेचर करना, इज टेक्सोनोमी. टेक्सोनोमी जो बन गया, ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है, नॉमेनक्लेचर कर चुके हैं, क्लासिफाई कर चुके हैं, मींस टेक्सोनोमी उसकी हो गई है. टेक्सोनोमी प्लस उसका इवोल्यूशन ट्री में, इवोल्यूशनरी जो ट्री फॉर्म हो रहा है, कहाँ कौन से कॉमन एंसेस्टर से कौन से टाइप का प्लांट, कौन से टाइप का ऑर्गेनिज्म हमारे पास आ रहा है, तो उसको अगर हम देखते हैं, मींस फाइलोजेनी को ऐड करते देते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, सिस्टेमैटिक्स बनता है, राइट. सो ब्रॉड स्टडी क्या है, सिस्टेमैटिक. उसमें जो नैरो एक आप कंसीडर कर सकते हैं, नैरो जो स्टडी है, एक पॉइंट को लेके जो स्टडी है, दैट इज टेक्सोनोमी. You have to keep in your mind that in systematic there is one addition, that is evolutionary relationship. evolutionary history क्या है उसकी, उसके पूर्वज कौन है, कौन सी कैटेगरी से आया है, कहाँ से वो इवॉल्व हुआ है, कहाँ से वो फॉर्म हुआ है. जब इन सब चीज़ों को कंसीडर करते तो सिस्टमैटिक्स है, अदरवाइज ऑल दोज पैरामीटर्स आर कंसीडर अंडर taxonomy. I hope this is clear, difference between systematics and taxonomy. Let's proceed. Now we have to talk about only plants in this chapter in detail. So we will consider the classification of
plants based on the various forms, or you can say based on their features, based on their habitat, based on their life form, कि कैसे कोई हमारा प्लांट टाइप ऑफ जो प्लांट्स हैं वो क्लासीफाई हुए हैं, क्या उनका हैबिटेट है, वो कहाँ रहते हैं, किस टाइप के एनवायरनमेंट में हमें मिलते हैं, किस टाइप का उनका लोकेशन है, उसके बेसिस पे, या फिर हमारे जो प्लांट्स हैं उनकी हाइट क्या है, हाइट के बेसिस पे जो हमने क्लासिफिकेशन किया है, दैट इज अबाउट द detailed classification of plants. So ecological classification of plants means that is based on the environmental condition. Ecological classification किससे डील करती है? Environmental condition, कि कैसे environment में हमें plants मिलते हैं उसके basis पे अगर हम classify कर रहे हैं, that is ecological classification of plants. So first of all, hydrophytes. Hydrophytes. Hydrophytes क्या है हमारे? As a name indicating, नाम ही indicate कर रहा है. Hydro means water and phytes means plant. Hydro का मतलब क्या है? Water. It's water, and phyte term is related to plants, right? Related to plants. So plant adapted to live nearly or quite submerged in water are called as hydrophytes. ऐसे plants जो adapted है कहाँ पे? पानी में रहने के, इधर फ्लोट फॉर्म में, सबमर्ज फॉर्म में, बिल्कुल सरफेस पे है पानी के, ठीक है, या फिर डूबे हुए हैं पानी के अंदर, उसके बेसिस पे क्या है हमारे पास और भी फर्दर बहुत सारी टाइप्स होती हैं अंडर हाइड्रोफाइट्स. फ्री फ्लोटिंग, सबमर्ज, ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स, राइट. देन हाइग्रोफाइट्स. हाइग्रोफाइट्स means these plants require invariable moisture, or these are the shade loving. Shade loving, we have a particular term for shade loving plants. Do you know what is that term? क्या बोलते हैं हम उस term को? Shade loving, skyophyte. The term is skyophytes, right? Shade loving plants that we can see here. All these plants are growing under the shade. डायरेक्ट सनलाइट जिनको नहीं चाहिए होती है, ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं हम? हाइग्रोफाइट्स या फिर शेड लविंग प्लांट्स. जिनको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए होती है, थोड़ा शेड में ग्रो करते हैं, या फिर अंडर द कैनोपी, बहुत सारे जो बड़े बड़े फॉरेस्ट होते हैं, ट्रीज के अंडर जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनके पास डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ पाती है, ऑल दोज आर स्कायोफाइट्स. देन मीजोफाइट्स. मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स जो हम देखते हैं अपने आसपास वो क्या है हमारे? Mesophytes, and that thrive based on moderate supply of water. Like you can see here, this mango tree, apple tree, right? Majority of tree जो हम अपने आसपास के environment में देखते हैं वो सारे क्या हैं हमारे? Mesophytes हैं, जिनको moderate supply of water चाहिए होते हैं. Then xerophyte. Xerophyte. The xerophyte is from the term xeric. Xeric, which means डेजर्ट. विच मीन्स डेजर्ट. क्या है टर्म का मतलब? डेजर्ट. डेजर्ट प्लांट, ड्रॉट लविंग, पानी नहीं पसंद है इन लोगों को. ऐसे प्लांट जिनको पानी पसंद नहीं है वो कहाँ होंगे? डेजर्ट में होंगे. और यू कैन से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, ऐसे प्लांट्स जिनको वाटर इतना अवेलेबल नहीं हुआ, उन्होंने सर्वाइव करना सीखा, अडेप्ट हुए धीरे धीरे टाइम के साथ, कैसी कंडीशन में? जहाँ पे कम पानी है. जीरोफाइट, लाइक वी कैन सी इन केस ऑफ कैक्टस. देख सकते हैं लंबे लंबे हमारे बड़े बड़े क्या हैं? कैक्टस हैं. कहाँ ग्रो कर रहे हैं? डेजर्ट में. कैक्टस, लाइक वी हैव ओपनशिया इन केस ऑफ कैक्टस, राइट. जीरोफाइट्स. देन हेलोफाइट्स. इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हेलोफाइट पूछ लेते हैं ये टर्म. प्लांट्स that inhabit saline condition means ऐसे प्लांट जो कहाँ रह सकते हैं? सॉल्टी कंडीशन में रह सकते हैं. they are better adapted in salty environment, like we all know salty condition में mangroves. Mangroves, कौन से प्लांट? mangroves, that we can see in the marshy area, mangroves. Then epiphyte, important term, epiphyte, plants which grow on the surface of
अदर प्लांट्स, दूसरे प्लांट की बॉडी पे जो प्लांट ग्रो करते हैं, मीन्स कोई मेन हमारा बिग प्लांट है उसकी बॉडी पे जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं एज अ you can say epiphyte are simply called as the epiphytes, right? दूसरे की बॉडी को यूज कर रहे हैं फॉर द substratum that we can easily see in case of pteridophytes or these are the ferns. ये कोई बिग ब्रांच है ट्री की, this one, and here all those mosses and ferns are growing. Like we have the orchid as a epiphyte on mango tree. Orchid क्या करता है, grow करता है as a epiphyte on mango tree. That is the example of one type of interaction called as the commensalism. Commensalism में हम पढ़ते हैं उसको, right? So this is all about the type of plant based on their habitat. Habitat के basis पे हमारी जो categories हैं plant की. Next is the category of plants based on their lifespan. लाइफ स्पेन के बेसिस पे जब हम प्लांट्स को डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, राइट, मीन्स व्हाट इज द ड्यूरेशन और व्हाट इज दैट टाइम पीरियड जिसमें कोई प्लांट हमारा फ्लावरिंग कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, वेजिटेटिव ग्रोथ शो कर रहा है, कितना टाइम वो यूज कर रहा है फ्रॉम बर्थ टू डेथ, दैट इज कॉल्ड एज द लाइफ स्पेन. लाइफ स्पेन क्या है, दैट ड्यूरेशन फ्रॉम बर्थ टू डेथ. So annual, biennial and perennial. Annual, biennial and perennial. We all know about this annual term. Annual function होते हैं हमारे schools में, colleges में, मतलब साल में जो एक बार होगा, once in a year, right? So annuals वो plant है जो अपनी cycle को complete कर लेते हैं एक ही season में. One season, annual, one mind में fit करना है. Like we have rice, कॉर्न, व्हीट, सनफ्लावर, जितने भी हमारी क्रॉप प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एनुअल होते हैं. ऑल दोज क्रॉप प्लांट्स मेनली जो एक सीजन में हम ग्रो करते हैं, जैसे लाइक वी हैव द रबी एंड खरीफ क्रॉप, और उनको हार्वेस्ट करके यूज़ करते हैं, राइट? हमें प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड कराते हैं एनुअल प्लांट. सो दैट वी कैन सी इन केस ऑफ राइस प्लांट. हियर वी हैव द राइस प्लांट. कैसा प्लांट है, एनुअल प्लांट है. बाइनियल, नेम इंडिकेट कर रहा है, टर्म बाई मीन्स टू, बाई मीन्स टू. ऐसे प्लांट्स जो कंप्लीट करते हैं अपनी लाइफ स्पेन को या फिर लाइफ साइकिल को इन 2 सीजन्स, 2 सीजन में जो कंप्लीट कर रहे हैं. लाइक वी कैन सी इन केस ऑफ कैरेट, कैबेज, बीटरूट. दिस इज इमेज ऑफ अनियन. ये अनियन की इमेज है. In one season they are growing vegetatively, means ऐसे प्लांट्स क्या कर रहे हैं, एक सीजन में वेजिटेटिव ग्रोथ शो कर रहे हैं, दूसरे सीजन में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ शो कर रहे हैं. रिप्रोडक्टिव ग्रोथ शो करके देन दे डाई. तो कितने सीजन यूज कर रहे हैं, दे आर यूजिंग 2 सीजन्स. बाइनियल, पेरिनियल, मोस्ट कॉमनली जो हम प्लांट्स अपने आसपास बिग ट्रीज जो हम देखते हैं वो सारे क्या होते हैं, perennial plants होते हैं, that survive for number of years. Like we have mango, apple, ये सारे हमारे पेड़ जो होते हैं, बड़े बड़े जो ट्री होते हैं वो क्या होते हैं, perennial होते हैं, जो सालों साल जिंदा रहते हैं. People, ficus, right? Neem tree, for example, mango, coconut, apple, bougainvillea. So this is the image of bougainvillea that producing this beautiful paper-like flower in case of bougainvillea. ये कैसे प्लांट्स हैं जो सालों साल चलते हैं, मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स तक. वी कैन सी द लाइफ स्पेन हैविंग नंबर ऑफ ईयर्स. किसी में 10 साल है, किसी में 20 साल है, किसी में 50 साल है. सो ऑल दोज आर पेरिनियल. लेट्स टॉक अबाउट द प्लांट्स बेस्ड ऑन देयर हाइट. हाइट के बेसिस पे क्या है, वी ऑल नो 3 कैटेगरीज. लोअर क्लासेस में हम बहुत बार पढ़ते हैं. सबसे छोटे जो प्लांट्स होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, हर्ब्स होते हैं. उससे बड़े जो झाड़ी की तरह होते हैं उनको हम श्रब्स बोलते हैं. फिर बहुत बड़े जो हमारे पेड़ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रीज बोलते हैं, राइट? तो हर्ब, श्रब एंड ट्री. इंपॉर्टेंट क्या है, हर्ब्स कैसे होती है, नॉन वुडी होते हैं, हर्बिशियस वी कैन से. ग्रीन होती है इनकी स्टेम, एंड स्टेम इज विद फ्यू ब्रांचेस, बहुत कम ब्रांचेस होती हैं. दैट वी कैन सी हियर इन केस ऑफ मिंट एंड बेसल. तुलसी के पौधे में देखते हैं, दिस इज मिंट, पुदीना. श्रब, टॉलर देन हर्ब, ऑब्वियसली थोड़े बड़े हैं, झाड़ी की तरह हैं. ब्रांचेस मेनली बेस से ही अराइज होती है, दैट इज द
पिक्चर ऑफ रोज प्लांट, रोज प्लांट जैसे हमारा हो गया, जैस्मिन हो गया, ऑल दीज आर द श्रब, झाड़ी की तरह बुश जब फॉर्म करे तो उसको हम श्रब बोलते हैं। ट्री बहुत ही बड़ा सा स्टेम है, लॉन्ग स्टेम, राइट, हैविंग मैनी ब्रांचेस, लाइक वी हैव मैंगो ट्री, वी हैव पीपल ट्री, फाइकस ट्री, नीम ट्री, ऑल दोज कोकोनट, ऑल दोज आर बिग वन, जो क्या है, बड़े बड़े हैं, बिग वन are the trees one. So all these are the classification of plants based on their habitat, based on their lifespan and based on their body form, body कैसी है, height कैसी है. Now let's talk about in detail about the various type of plant categories. Classification of plants broadly. Now we have to understand this classification in detail. We have to imprint this classification. हमें क्या करना है, इस classification को mind में fit करना है, imprint करना है, because this is very very important. जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे, आपको एक ऑर्डर नहीं पता होगा कि कौन सा प्लांट पहले है, कौन से टाइप के प्लांट प्रिमिटिव है, कौन से टाइप के प्लांट एडवांस है. यू विल नॉट बी एबल टू लर्न ऑल दोज फीचर्स ऑल्सो. इनसे रिलेटेड जो डिटेल बातें हैं, जो फीचर्स हैं, वो भी हम माइंड में फिट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव टू फिट इन आवर माइंड व्हाट आर द वेरियस कैटेगरीज, व्हाट आर द वेरियस सब किंगडम, क्लासिफिकेशन, क्या टर्म्स यूज हुई हैं, कौन से प्रिमिटिव कैटेगरी के हैं, कौन से हमारे एडवांस कैटेगरी के हैं. सो लेट्स टेक वन बाय वन. जो भी चीज़ें करेंगे अच्छे से करेंगे, ध्यान से करेंगे, माइंड में फिट करते हुए चलेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, किंगडम प्लांटी इज डिवाइडेड इनटू 2 सब किंगडम. 2 सब किंगडम में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन हाउ वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ, हाउ वी हैव द लाइक स्पोर्स कैसे बन रहे हैं. स्पोर्स बन रहे हैं तो वो किस टाइप के स्पोर्स बन रहे हैं, क्या छुपे हुए हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं, या फिर सीड बन रहे हैं तो वो किस टाइप से बन रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द टर्म इज क्रिप्टोगैमे. टर्म क्या है, क्रिप्टोगैमे. क्रिप्टो मीन्स हिडन, क्रिप्टो दैट वी ऑल नो, सबको ही पता है आजकल ये टर्म. क्रिप्टो करेंसी, ऐसा पैसा, ऐसी करेंसी जो क्या है, हिडन है, छुपी हुई है. सो लाइकवाइज कैन यू रिलेट, कोरिलेट कर पा रहे हैं इसको. क्रिप्टो टर्म कहाँ से आया है, छुपे हुई टर्म जो है. क्रिप्टो मीन्स हिडन, हिडन छुपा हुआ है, राइट. गैमे मैरिज, हिडन मैरिज मीन्स विजिबल नहीं होगा. ऐसे प्लांट्स जहाँ पे प्रॉपरली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर नॉट विजिबल, दे आर हिडन, दीज स्ट्रक्चर्स आर हिडन एंड देयर वी हैव द स्पोर फॉर्मेशन, नॉट सीड फॉर्मेशन. सीड नहीं बनता है. सो प्लांट्स विदाउट सीड, और यू कैन से हियर वी हैव स्पोर फॉर्मेशन. कौन बन रहे हैं, स्पोर्स बन रहे हैं, सीड नहीं बन रहे हैं, राइट, नो सीड. Now let's come to the phanerogamy. Phanerogamy means ऐसे मैरिज जो विजिबल है, विजिबल मैरिज, विजिबल, विजिबल है यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है. All those structures are visible and seed formation is there. Plants with seed formation, plants with seed formation. Now if we talk about cryptogamy, जहाँ पे hidden marriage है, छुपे हुए स्पोर्स हैं, कोई सीड नहीं बन रहा है. फर्दर 3 डिवीजन है हमारे पास, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड द लास्ट कैटेगरी अंडर दिस क्रिप्टोगैमी इज टेरिडोफाइटा. माइंड में फिट करेंगे क्या है 3 कैटेगरी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा. थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा किसके अंडर है, हिडन मैरिज के अंडर है, क्रिप्टोगैमी के अंडर है. मीन्स क्रिप्टोगैमी ने इन 3 डिवीजन को क्या किया हुआ है, छुपाया हुआ है, राइट. सो सिंपल, वेरी सिंपल प्लांट. बॉडी कैसी है, थैलस की तरह. सो सिंपलेस्ट, सीडलेस, सीडलेस, फ्लावरलेस, नॉन वेस्कुलर प्लांट. नॉन वेस्कुलर प्लांट बहुत ही बेसिक सी बॉडी है, बहुत ही सिंपल से प्लांट है, कोई फ्लावर नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, नॉन वेस्कुलर प्लांट है, ना ही कोई यहाँ पे जाइलम वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, ना ही जाइलम प्रेजेंट है, ना ही फ्लोएम प्रेजेंट है. किसको इंक्लूड करता है, एल्गी को इंक्लूड करता है, राइट. इट इंक्लूड्स एल्गी. यहाँ पे कौन किसको इंक्लूड कर रहा है, दिस इज इंक्लूडिंग एल्गी. थैलोफाइटा रिमेंबर बेसिक सी बॉडी है, फंजाई में भी हमने पढ़ा था, बॉडी इज लाइक अ थैलेस. सो एल्गी वी ऑल नो कैसे होती है, ग्रीन होती है, ऑटोट्रॉफिक होती है,
ग्रीन है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगी. और थैलोफाइट्स बोलते हैं. लाइक एग्जाम्पल, सो मेनी एग्जाम्पल्स वी हैव अंडर एल्गी, क्लिमाइडोमोनास, पायरोगारा, क्लोरेला, यूलोथेरिक्स, चारा, कारा भी बोलते हैं, चारा भी बोलते हैं. बोथ द टर्म्स आर, both the pronunciation are correct, right? And other algae also, vulva, Oedogonium, all those under algae, under thallophyta. Now let's come to the bryophyta. Those are commonly called as, क्या बोलते हैं commonly? Bryophytes are commonly called as, क्या बोला जाता है in basic language? Amphibians of plants. Amphibians of plants. Amphibians of plants मीन्स इनको पानी की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है. कैसे हैं? ऑब्वियसली बात है, इनसे थोड़े एडवांस हैं, थैलोफाइटा से थोड़े एडवांस है, बट एज कंपेयर टू दोज वन दीज आर ऑल्सो प्रिमिटिव वन. ये भी कैसे हैं? पुराने टाइप के. तो simplest land plant with undifferentiated plant body as such. There is no differentiation of root, stem and leaves. रूट, स्टेम और लीव्स का कोई डिफरेंशिएशन नहीं है. बॉडी अनडिफरेंशिएटेड है, क्लियरली डिफरेंशिएशन नहीं है. फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, हेपेटिक है, एंथोसेराटो और मस्के. पसीडा भी हम टर्म यूज कर सकते हैं, पीछे सफिक्स जो है. कॉमनली क्या बोलते हैं? लीवरवोट, जिसमें रिक्सिया और मार्केंशिया एग्जाम्पल है. हॉर्नवोट, हॉर्न की तरह बॉडी अपीयर होती है. एंथोसेरोज, mosses, funaria. We will study about these in detail later on when we will talk about bryophyte, right? Next is phanerogams. Sorry, we are left with this pteridophyte na. Pteridophyte, first land, or you can say इनको commonly vascular, having the vascular system, having the vascular दो xylem and phloem, और कंसीडर किया जाता है लैंड प्लांट की तरह. दो दिस इज ऑल्सो लैंड प्लांट, बट ये नियरली हमें कहाँ मिलते हैं? पानी के आसपास मिलते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं कॉमनली? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स. ब्रायोफाइट्स आर कंसीडर एज पी साइलेंट, सॉरी नॉट ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स. पी इज साइलेंट, राइट? दीज आर कंसीडर एज द फर्स्ट लैंड प्लांट, राइट? प्रॉपर यू कैन से लैंड प्लांट. बॉडी यहाँ पे डिफरेंशिएटेड है कंपैरेटिवली रूट, स्टेम एंड लीव्स में. रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीव्स लाइक. फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस, साइलोपसीडा, लाइकोपसीडा, सिफेनोपसीडा एंड टेरोपसीडा. डिटेल में बाद में पढ़ेंगे अबाउट ऑल दोज अंडर दिस डिवीजन. नेक्स्ट कम टू द advanced type of plants, phanerogams, under which we have 2 division including gymnosperms and angiosperms. Gymnosperms and angiosperms. So as we can see, in case of gymnosperms, seeds are produced and these seeds are not enclosed by the fruit. सीड्स क्या है? सीड के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है फ्रूट की. यूजुअली हम क्या देखते हैं, जो हम फल खाते हैं, जो फ्रूट हम यूजुअली ईट करते हैं, उसमें क्या होता है? अंदर सीड होता है, छुपा हुआ होता है, और बाहर वाला फ्रूट हम खाते हैं. तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म के केस में क्या है हमारे पास? सीड्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय फ्रूट. और वी कैन से, अगर हम बिफोर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो हमारे जो ओव्यूल्स हैं, दीज आर नॉट कवर्ड बाय द ओवरी. ओवरी से कवर्ड नहीं है. फर्दर डिवाइडेड किया गया है 3 क्लासेस में, साइकेडोपसीडा, कॉनिफेरोपसीडा एंड नीटोपसीडा, इन विच वी हैव टू स्टडी. इंपॉर्टेंट है साइकेस पाइनस एंड नीटम. नाउ कम टू द एंजियोस्पर्म, एडवांस टाइप ऑफ प्लांट्स. जो मॉडर्न डे प्लांट है वो कौन है? हमारे एंजियोस्पर्म है. यहाँ पे सीड्स आर एनक्लोज्ड बाय द फ्रूट. ऑब्वियसली जो ओव्यूल्स हैं वो किससे कवर्ड है? ओवरी से कवर्ड है, राइट? सो बाय विच इज फॉर्म्ड बाय ओवरी. ऑल्सो कॉल्ड एज, कॉमनली कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट. यहाँ पे स्टेम क्या बियर करता है? फ्लावर बियर करता है. इन केस ऑफ
angiosperm. Further divided into two classes, monocotyledony and dicotyledony based on the number of cotyledon. किसमें? सीड में कितने कॉटिलिडॉन्स प्रेजेंट हैं, सीड के कॉटिलिडॉन्स के बेसिस पे. इफ हैविंग वन कॉटिलिडॉन, एक है तो मोनोकॉटिलिडोनी, लाइक व्हीट, राइस, कॉर्न. डाइकॉटिलिडोनी अगर नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन्स क्या है, 2 है, लाइक इन केस ऑफ मैंगो, एप्पल, ऑल दोज आर डाइकॉट. सो दिस वाज द कंप्लीट क्लासिफिकेशन. ये क्या है, हमारी पूरी क्लासिफिकेशन है, कंप्लीट क्लासिफिकेशन फ्रॉम प्रिमिटिव टाइप टू द एडवांस टाइप ऑफ प्लांट. कैसे स्पोर बेयरिंग प्लांट से धीरे धीरे टाइम के साथ साथ हमारे पास क्या है, एडवांस प्लांट आए विद द सीड बेयरिंग. और सीड बेयरिंग में भी कैसे है, हमारे फ्लावर बेयरिंग है, सीड भी क्या है, एनक्लोज्ड है विद द फ्रूट. एनी डिफिकल्टी हियर, एनी क्वेश्चन, एनी पॉइंट? I hope it is clear. चलो, let's proceed in detail about the how we have the life cycle of plant. प्लांट की क्या कंप्लीट लाइफ साइकिल है. जैसे हमारी भी क्या होती है, एक साइकिल है, एक लाइफ स्पेन है. बर्थ होता है, धीरे धीरे मेच्योरिटी आती है, धीरे धीरे हम ग्रो करते हैं, डेवलपमेंट होती है, राइट. प्यूबर्टी हिट करती है इफ़ वी टॉक अबाउट ह्यूमन बीइंग. देन वी हैव एडोलेसेंट स्टेज, एडल्ट होते हैं और धीरे धीरे ओल्ड होके मर जाते हैं, डेथ हो जाती है. सो लाइक वाइज इन केस ऑफ प्लांट ऑल्सो वी हैव बर्थ से कहाँ तक है, डेथ तक है. सो बिटवीन दिस बर्थ एंड डेथ व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द बॉडी. बॉडी की क्या फॉर्म्स बनती हैं, कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स विजिबल होते हैं. जैसे अगर हम सिंपल से बात करें इन केस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, और मोर एक्यूरेटली इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन बीइंग, पहले फ्यूजन होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट से एम्ब्रियो फॉर्म होगा, धीरे धीरे फीटस में आपका फॉर्मेशन होगा, ग्रोथ होगी, राइट. फीटस आफ्टर पार्चुरेशन, डिलीवरी के बाद वर्ल्ड में आएगा, इस दुनिया में आएगा, फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, चाइल्डहुड स्टेज आएगी, फिर एडोलेसेंट, प्यूबर्टी हिट करेगी, एडोलेसेंट आएगा, अडल्ट बनेगा और धीरे धीरे ओल्ड होके डेथ होगी. तो ऐसे प्लांट के केस में भी क्या बॉडी फॉर्म है, बॉडी कैसे इनकी फॉर्म होती है. एंड हियर इन केस ऑफ प्लांट टू इम्पॉर्टेंट बॉडी फॉर्म्स आर स्पोरोफाइट, दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड, एंड गेमिटोफाइट. क्या रखनी है दिमाग में, दो बातें. कैसी है प्लांट की बॉडी, स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट. प्लांट की बॉडी को क्या बोला गया, दो बॉडी फॉर्म को क्या बोला गया, स्पोरोफाइट एंड गेमिटोफाइट. नेम इंडिकेट कर रहा है, स्पोरोफाइट वो प्लांट बॉडी है जो स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी, गेमिटोफाइट वो प्लांट बॉडी है जो गेमीट्स प्रोड्यूस करेगी, राइट. इजीली याद कर सकते हैं. स्पोरोफाइट ऐसी बॉडी जो स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी, गेमिटोफाइट ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसी बॉडी जो गेमीट्स प्रोड्यूस करेगी. नाउ व्हाट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड दैट इफ वी टॉक अबाउट द प्लॉइडी, अगर हम प्लॉइडी की बात करते हैं, हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, तो स्पोरोफाइट्स कैसे हैं, विद 2n प्लॉइडी मीन्स डिप्लॉइड. सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. डिप्लॉइड कैसे हैं, डिप्लॉइड है, राइट. गेमिटोफाइट half number of chromosomes, haploid. N is for haploid, 2n is for diploid. N किसके लिए है, haploid के लिए है. N is equals to haploid means half. Haploid means half. Half number of chromosome, आधे हैं. 2n diploid. Diploid means double. डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट. ये दो बॉडी फॉर्म है. सारी कहानी प्लांट की लाइफ साइकिल में, इधर इट इज एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, किसके अराउंड है, इन दो लाइफ फॉर्म के अराउंड है. कौन सी इनमें से डोमिनेटिंग है, कौन सी
सप्रेसिव टाइप है, मतलब इतनी विजिबल नहीं है। इसी के अराउंड पूरी क्या है, लाइफ साइकिल है, ऑल दोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो हम आगे पढ़ेंगे अबाउट डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल। ये दो चीज़ें हमें माइंड में फिट करनी है। अगर ये दो चीज़ें फिट हो जाती हैं सो इट इज़ क्वाइट ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दो साइकिल ऑफ प्लांट्स, राइट। तो इतना क्लियर हुआ। गेमेटोफाइट क्या है, हैप्लॉइड है, एक बॉडी फॉर्म है, दूसरी बॉडी फॉर्म क्या है, स्पोरोफाइट है। कैसी है, डिप्लॉयड है। कैसे याद कर सकते हैं हम इसको, हैप्लॉइड गेमेटोफाइट, हैप्लॉइड H A ले लेते हैं हैप्लॉइड का, गेमेटोफाइट का GA ले लेते हैं, हागा। इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू लर्न इट, हागा। स्पोरोफाइट कैसे है, डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड का DI ले लेते हैं और स्पोरोफाइट का डिस्पो, हागा डिस्पो, हागा डिस्पो। हैप्लॉइड गेमेटोफाइट, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, डिस्पो हागा। जैसे भी आप याद करना चाहो, हागा डिस्पो, डिस्पो हागा, इट्स अप टू यू। माइंड में फिट क्या होना चाहिए, गेमेटोफाइट हैप्लॉइड है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ है, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ है। सो लेट्स स्टार्ट द बॉडी फ्रॉम हेयर। सपोज करो प्लांट बॉडी यहाँ पे क्या है हमारे पास, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ है, मीन्स स्पोरोफाइट है। तो यहाँ पे स्पोरोफाइट क्या करेगा, ऑब्वियसली स्पोर फॉर्म करेगा। स्पोर कैसे फॉर्म करेगा, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ। तो यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा। ऑल दो स्पोरेंजिया, वो सैक बनेगा। स्पोरेंजिया क्या है, दैट इज द सैक पाउच जहाँ पे स्पोर्स फॉर्म होंगे। स्पोर मदर सेल, वो पर्टिकुलर सेल्स डिफरेंशिएट होंगे। यहाँ पे ऑल दोज लाइक सेल्स आर प्रेजेंट, सेल्स डिफरेंशिएट होंगे जिनको क्या बनाना है, स्पोर्स बनाने हैं। तो स्पोर मदर सेल 2n नंबर ऑफ प्लॉइडी है अभी, एंड इट विल अंडरगो, ये सेल्स क्या परफॉर्म करेंगी, कौन सा सेल डिवीजन परफॉर्म करेंगी, मियोसिस। बिकॉज वी नो मियोसिस क्या है, रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन है तो प्लॉइडी को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, हाफ कर देगा। तो स्पोर्स क्या हो गए हैं, स्पोर्स किसके साथ बने हैं, n नंबर ऑफ प्लॉइडी के साथ बने हैं, राइट। सो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट हियर इन द स्पोर्स। स्पोरोफाइट स्पोर बनाया कौन से प्रोसेस के थ्रू, मियोसिस, इंपॉर्टेंट। स्पोरोफाइट स्पोर बनाएगा मियोसिस के थ्रू। गेमेटोफाइट गेमीट्स बनाएगा माइटोसिस के थ्रू। गेमेटोफाइट गेमीट बनाएगा माइटोसिस के थ्रू। अब ये स्पोर्स जर्मिनेट होंगे और क्या बनाएंगे, गेमेटोफाइट बनाएंगे। क्लियर हुआ। स्पोरोफाइट क्या बनाएगा, गेमेटोफाइट। स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट बनाएगा किसके थ्रू, स्पोर्स के थ्रू बनाएगा। कौन सा प्रोसेस ऑपरेट होगा, सेल डिवीजन, मियोसिस ऑपरेट होगा। नाउ साइकिल रिपीट होगा, दैट्स व्हाई द टर्म इज साइकिल हियर। चक्र चल रहा है यहाँ पे। तो गेमेटोफाइट क्या कर रहा है, स्पोरोफाइट बना रहा है वाया गेमीट्स, वाया गेमीट्स। प्रोसेस कौन सा होगा, क्योंकि प्लॉइडी क्या है, ऑलरेडी हाफ है, प्लॉइडी इज ऑलरेडी हैप्लॉइड, तो उसको और हाफ नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा डिवीजन होगा अब यहाँ पे, माइटोसिस होगा। कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस के थ्रू क्या बनेगा, फीमेल गेमीट एंड मेल गेमीट। फीमेल गेमीट मेल गेमीट क्या होंगे, प्लॉइडी क्या होगी, एन ही होगी, क्योंकि डिवीजन क्या हुआ है, माइटोसिस, और प्लॉइडी को रिड्यूस नहीं कर सकते ना। फ्यूजन होगा, अगेन प्लॉइडी इज डिप्लॉयड इन केस ऑफ जाइगोट। फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गेमीट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फर्दर डिवाइड करके जाइगोट क्या कर रहा है, अपनी सेल्स को इंक्रीज कर रहा है एंड इट इज फॉर्मिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो फर्दर ग्रोथ शो करेगा, क्या फॉर्म करेगा, स्पोरोफाइट। क्या फॉर्म करेगा, स्पोरोफाइट। माइंड में फिट करो, स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट बनाएगा, गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट बनाएगा, ऐसे साइकिल चलेगी। स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट बना रहा है, गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट बना रहा है, स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट बना रहा है स्पोर्स के थ्रू। प्रोसेस कौन सा होगा, मियोसिस। गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट बना रहा है, नीचे सेम स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो प्लॉइडी क्या चाहिए, 2n चाहिए। स्पोरोफाइट क्या था, 2n के साथ था, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गेमेटोफाइट में गेमीट बन रहे हैं, माइटोसिस के थ्रू दो गेमीट फ्यूज कर रहे हैं। तो अगेन जाइगोट के अंदर प्लॉइडी क्या हो रही है, सेम हो रही है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं, 2n हो रहे हैं, एंड इट इज फॉर्मिंग स्पोरोफाइट।
ओके, नाउ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दिस लाइफ साइकिल. प्लांट में हमारे पास कैसे अलग अलग टाइप की लाइफ साइकिल है, एंड व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. देखो अभी हमने क्या पढ़ा, स्पोरोफाइट, क्या बना रहा है, गेमेटोफाइट. गेमेटोफाइट फॉर्म कर रहा है. कैसे फॉर्म कर रहा है, the sporophyte is forming gametophyte and gametophyte is forming sporophyte via intermediator. intermediator कौन है यहाँ पे, इस केस में स्पोर्स के थ्रू और यहाँ पे गेमीट्स के थ्रू. गेमीट्स प्रोसेस कौन हो रहा है यहाँ पे, हियर वी हैव मियोसिस और यहाँ माइटोसिस. माइटोसिस जिससे प्लॉइडी क्या रहती है, सेम रहती है, इक्वेशनल डिवीजन, राइट. तो ये साइकिल हमारी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है. दो जनरेशन क्या है, गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट बना रहा है, गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट बना रहा है. तो ये क्या हो रहा है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. एक जनरेशन किसकी आ रही है, स्पोरोफाइट की, दूसरी जनरेशन किसकी आ रही है, गेमेटोफाइट की. सो दिस इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. कैसे प्लांट में स्पोरोफाइट फैसिलिटेट करता है गेमेटोफाइट बनाना और गेमेटोफाइट फैसिलिटेट करता है स्पोरोफाइट बनाना, राइट. सो दिस इज हाउ वी हैव द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन केस ऑफ प्लांट्स.